So hey guys, welcome back to Definitely, and we were discussing about our placement guidance program. So my name is Rahul, and this is about me having an close to like 5 years of experience in life science management consultancy. Been associated with Ernst and Young, and before that as associates, president of DIPSA Students Union, with an educational background in pharmacology, and before that I did my graduation in pharma and also appeared in GPAT with the rank of 577. So guys, we were discussing about placement guidance program, and आज हम discuss करने वाले हैं, like we already discussed module 0 and module 1, that is introduction to interview guidance program, and then overview of different life science and pharma consultancy companies. So module 2 and module 3, we'll keep this in Hindi plus English as always so that you guys can understand better. So module 2 and module 3 mein what we'll discuss about, we will discuss like how to prepare for aptitude test and then group discussions. So rescheduling these to 30 minutes each. Earlier it was mentioned that it is 1 hour, but yeah, we can wrap this up in 30 minutes. We will discuss like basic type of questions asked, how to prepare and practice them, and same for group discussions. So without wasting further time, let's jump to slide number 4. सो सी अब सबसे पहले हमारी बात आती है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड में वाई इट्स इम्पोर्टेंट. सो देखो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर ओवरव्यू ऑफ प्लेसमेंट गाइडेंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब हमने प्रोसेस सारे के सारे डिस्कस किए थे कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, दे स्क्रीन स्टूडेंट्स एट अ वेरी इनिशियल लेवल, दैट इज they did a resume based screening. But yeah, you all guys are fresher in case you are experienced, not experienced one, so you are in college. So in that case, you guys are freshers, and for freshers they cannot do resume based screening क्योंकि उनके पास बहुत ही limited choices होती हैं. Like they can scrutinize based on your field of masters कि we want to hire persons from farm MBA और pharmacology और pharmaceutics. तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं. एंड तो इस केस में एक तो स्क्रूटनाइज करने का ये वाला तरीका है, एंड सेकंड वन इज दैट on the basis of your percentage marks, like sometimes Novartis apply this criteria कि ठीक है, we will interview students जिनके, और we will shortlist students based on their based on their percentage in graduation और in like masters first year वगैरह में जो आपके नंबर होते हैं उनके बेसिस पे भी they sometimes filter down the students and shortlist their applications. ठीक है. सो अभी एक चीज़ तो हमने कवर कर ली है कि इम्पोर्टेंट क्यों है. अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. देखो, अगर किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की होगी या फिर कभी कभी नाइप पर के एम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सो एप्टीट्यूड को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले आता है आपका क्वांट्स, देन आता है आपका विजुअल एबिलिटी and reading comprehension, and the third one is that data interpretation और logical reasoning. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वांट्स की. तो देखो, क्वांट्स अपने आप में बहुत ही वास्ट है, बट क्वांट्स में क्या क्या आ सकता है आपका और क्या क्या आता है. देखो, क्वांट्स में आपका आता है सिंपल, जैसे नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चंस हो गए आपकी कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट, और दे विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस. जिनके पास 10th में मैथ्स थी एंड जिनके पास 10th के बाद मैथ्स नहीं थी, तो जो 10th के बाद, जिनके पास 10th के बाद भी मैथ्स थी, उनको ये जो सारे के सारे सेक्शंस हैं, दे विल फील कि ये बहुत इजी हैं. बट जिनके पास 10th में मैथ्स नहीं थी, आई विल सजेस्ट कि वो हम सब इसमें कवर कर लेंगे. बट पिकअप अ बेसिक बुक. बेसिक बुक कौन सी है, आई विल डिस्कस नाउ इन सम टाइम. सो हाँ, सो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वांट्स में कि लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है हमारा. ठीक है. लीनियर इक्वेशंस, देन समटाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह से नहीं आता है, जस्ट लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है कि सपोज कि एक्स की आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के. सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस दैट. तो लीनियर इक्वेशन से आ जाता है, देन रेशियो से आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. ठीक है. प्रोपोर्शंस, देन परसेंटेजेस. देन परसेंटेजेस के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं वर्क एंड टाइम. ठीक है. वर्क एंड टाइम में आ गया कि अगर सपोज दिस नंबर ऑफ पर्सन्स डूज दिस थिंग इन इतने डेज, तो हाउ मैनी पर्सन्स विल इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क इन सो मच अमाउंट ऑफ टाइम. देन प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं.
तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारे क्वांट्स में आते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारे पास वीआरसी। सो गाइस वीआरसी क्या होता है? विजुअल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इसमें क्या होता है, विजुअल एबिलिटी में आपको पूछते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू, देखो एक तो हो सकता है आपको शेप्स वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, कि सेलेक्ट द ऑड शेप आउट एंड, या तो आपको पैटर्न्स बना देते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सो ये जो पैटर्न्स वाला है दैट कम्स अंडर डी एल एल आर, बट विजुअलेबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्या आता है, तो सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर आप क्या जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, जिसमें और फिर वही होता है कि पिक द ऑड वन आउट। तो आपको पहचानना है कि लाइक सिनोनिम है, एंटोनिम है, एंड देन ऑड पेयर आउट, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज लाइक कार इज एसोसिएटेड विद, आपको जैसे आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ऑड वन आउट में आपके पास 4 ऑप्शन है, कार एंड देन कार बस, ठीक है, कार बस ट्रक, एंड देन फिर आपको दे दिया है वहाँ पे मोटरसाइकिल। सो कैन क्लियरली सी कार इन सब में तो 4 व्हील्स ड्रिवन है ये, एंड देन इसमें बस 2 व्हील्स ड्रिवन है, तो ऑब्वियसली द मोटरसाइकिल इज द ऑड वन आउट। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, अपना सोचना पड़ता है कि ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मोस्टली आपके आता है पैसेज, ठीक है, पैसेज आता है, आपको पैसेज कंप्लीट करने होते हैं, ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। कि आपको क्या करेंगे, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका स्टार्टिंग का एक हमें बताना है। जैसे उसमें आपको सपोज 4 लाइन का 4 आपको सेंटेंस दिए एंड उसमें से 2 एक्स्ट्रा दिए, तो आपको बोलेंगे कि यार इसमें से बताओ कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सा इस पैराग्राफ में आएगा, लाइक व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू दिस पैसेज और द कंक्लूजन, वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आएगी। या काफ़ी बार कैसा होता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दी और उसमें से पूछा विच ऑफ दिस यू डोंट थिंक कि दिस विल बी अ पार्ट ऑफ पैसेज, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी की, अब मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते करते अब मैं पूछ गया सपोज टेररिज्म पे, तो आप देखोगे टेररिज्म यहाँ पे ऑड कंसेप्ट आ गया, क्योंकि मैं बात तो इंडियन डेमोक्रेसी की कर रहा था। तो इस टाइप के, और यूजुअली क्या होता है ना कि अभी हम बात भी करेंगे कि इनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है क्या होता है, ठीक है। तो वीआरसी में किया गया हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और आपको रीअरेंज करना पूछ लेंगे, तो वो क्या होता है ना, वो बड़ा एक थिन मार्जिन है बिटवीन एल आर एंड वीआरसी। तो विजुअल एबिलिटी और एल आर ना कहीं कहीं ओवरलैप करते हैं, quant is completely different but VRC and some portion of LR they overlap with each other। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे नहीं पूछा तो यहाँ पर नहीं पूछा, वो एक्सचेंज में पूछ सकते हैं। जैसे आपको कुछ स्पेलिंग दे देंगे या फिर आपको कुछ पैटर्न्स दे देंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि अच्छा ठीक है चलो इसको अरेंज करो। जैसे आपको मान लो सपोज आई यूज अ वर्ड डेफिनेटली, सो एक डेफिनेटली को उल्टा करके दे देंगे, देन फिर एक दूसरी कंपनी का नाम उल्टा करके दे देंगे। तो ऐसे आपको वो रिलेशंस बनाने होंगे कि अगर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको मिलते हैं ग्राफ, जैसे हमने अभी जो आगे आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो केस स्टडी वाले हैं कि कैसे कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया गया एस्टिमेट्स वगैरह, बट यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिंपल बार ग्राफ्स मिल सकते हैं, आपको पाई चार्ट्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ना आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछ सकते हैं। फिर नॉर्मल आपको टेबल्स बता दी, चलो टेबल्स में देखिए बताओ कि इसकी ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू है, तो क्या वैल्यूज आ सकती हैं। देन नेक्स्ट इज वही कि लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको क्या क्या पूछ लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं इफ आई फ्रेम अ क्वेश्चन, तो सपोज कि दिस पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस एंड वहाँ से जाने में उतना टाइम लगा, सेम पर्सन वहाँ से यहाँ पर आया, तो अब अगर मुझे इस वाले वे से जाना है तो मैं क्या लूँगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमें एक तो डायरेक्शंस कवर करना होता है, ठीक है, बार ग्राफ। डायरेक्शंस कैसे कवर करनी है हमें कि सपोज ये पर्सन यहाँ पर बैठा है, तो इसके साथ में अगर थर्ड पोजीशन पे बैठा है तो बताओ इस पोजीशन पे कौन सा होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमें कवर करने होंगे कि इफ एक्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन, तो अगर अच्छा ठीक है एक्स इस डायरेक्शन पे मूव चला कर गया है, तो उसके बाद फिर वो वाई में चला गया, नॉर्थ में चला गया 40 किलोमीटर, देन वो साउथ चला गया है, तो फाइनली वो कहाँ के इस पॉइंट पे स्टैंड होएगा।
सो इस टाइप के क्वेश्चन हमें हमें पूछ सकते हैं। और इसके जो यहाँ पे क्वांट्स में, और हमारे एक तो बोट्स टाइप के बोट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बोट्स में जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम हमें पूछ सकते हैं यहाँ पे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन जिन्होंने नहीं किया वो देख लेना। पूछते हैं कि सपोज यू हैव दिस मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी एंड आई वांट टू गेट दिस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, और हमें इस परसेंटेज का चाहिए। सो क्या वहाँ पे पता लगेगा हमें, इनको किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाएगा। सो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ईजी हैं, नॉर्मली पूछ लेते हैं, एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी, ठीक है। डायरेक्शन तो हम बात करें टेल एंड एलआर की, तो डायरेक्शंस, बार ग्राफ्स, एंड देन और लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, और लॉजिकल रीजनिंग में हमारा आ जाता है सो और लॉजिकल रीजनिंग में हमारा क्या आ जाता है, पजल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन वो डाइस वाले आ जाते हैं कि सपोज मेरे पास ये डाइस है तो मैंने इसको ऐसे रोल किया तो कौन सा नंबर मेरे पास आएगा, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो घूम कहाँ पर आऊँगा। तो ये सब है कि सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की। चलो आपको आपको दो स्टेटमेंट बताएंगे, फिर पूछेंगे कि दोनों अजम्पशंस करेक्ट है नहीं है, या फिर पहले वाले में आपको एक स्टेटमेंट दिया, देन उसका एक वो दिया आपको सपोर्टिंग आर्गूमेंट, एंड देन फिर आपको पूछेंगे कि ये बताओ, आपके पास चार ऑप्शन है कि वेदर ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, और ए करेक्ट है बट बी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप से आपको पूछेंगे इस सब के सब क्वेश्चंस। ऑड वन आउट हो गया आपका, डाइसिस हो गया, ठीक है। एंड ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आता है। ये इसका चाचा था, ये इसका मामा था, अब इसकी से शादी हो गई, तो बताओ ये इसका क्या लगेगा। सो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछ लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं नॉर्थ को लिख रहा हूँ 5 4 3 2 1, तो मुझे बताओ अब मैं साउथ को कैसे लिखूंगा, तो आपको वो मैच करना है। फिर सपोज डिक्शनरी इज रिटन एज 9824, इस टाइप से आपको कुछ उनमें पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं। अब देखो सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं, तो बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर इज आपका यूट्यूब, ठीक है। एंड यूट्यूब से भी अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक जाना है तो इंडिया विक्स, मतलब यूट्यूब से आपको वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगी। यूट्यूब उनके लिए अच्छा है जिनके पास जिनके पास टेंथ के बाद मैथ्स नहीं थी, ठीक है। एंड बहुत जल्द हम अपना भी एक स्पेशल कोर्स लेके आने वाले हैं विच विल सोनली फोकस ऑन एफटी, एंड जो सिर्फ एफटी वहाँ पर डिस्कस होगा। तो हम क्या करेंगे, एक 4 5 घंटे का ऐसा कोर्स वी विल पब्लिश, वी आर प्लानिंग टू पब्लिश, जहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा इन डेप्थ एफटी कैसे सॉल्व करना है वो मिल जाएगा। सो वी आर टॉकिंग विद वन ऑफ आवर मेंबर्स एंड ही विल प्रेजेंट दैट कोर्स टू यू, ठीक है। सो यूट्यूब उनके लिए, यहाँ पे मैं बता दे देता हूँ, 10th के बाद मैथ्स नहीं थी, 10th के बाद नो मैथ्स, ठीक है। इंडिया विक्स हु हैड मैथ्स आफ्टर 10th, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा अब यहाँ पे ना कुछ कुछ क्या होता है कि आपको जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक्स आती है, बट देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं एफटी के बहुत बड़ी हो सकती हैं, एसएससी सीजीएल। सो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जस्ट बुक अरिहंत पब्लिकेशंस की एक एफकेट की बुक आती है। तो होता क्या है कि एफकेट का जो सिलेबस होता है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांट्स, और वहाँ पे आपको टिपिकल वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे दैट आर नेसेसिटी टू यू। सो वहाँ पे कुछ फालतू के क्वेश्चंस जो होते हैं वो देख लेना, कि जैसे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट वगैरह, तो सब एसएसबी के लिए है, बट उसको हटा दो एंड जस्ट रिमेंबर कि अरिहंत की बुक से हमें वो सब चीज़ें कवर करनी है जो इन में आ रही है, क्वांट्स, ईआरसी एंड डीएलआर, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ से कर नहीं कर रहा जो स्पेसिफिकली वहाँ के लिए मैंने कि इस चीज़ को मिरर में देखेंगे तो ऐसी इमेज बनेगी, और एडवांस लेवल हो जाता है उतना नहीं पूछते हैं। टिपिकल जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं देयर आर 60 to 100। सो 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, सब एवरेज निकाल लो कि इट्स लाइक अगर 100 क्वेश्चन हैं तो आपको हो जाता है कि कुछ इतने सेकंड में 40 सेकंड्स के आसपास में आपको एक जो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। और अगर 60 क्वेश्चन आ गए देन यू हैव 1 minute फॉर वन क्वेश्चन, तो इट्स वेरी इजी।
अब देखो टैक्टिक्स टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अब यहाँ पर क्या टैक्टिक्स है हमारे पास, देखो साफ सीधी बात है, अगर हम बहुत ही शब्दों में बात करें, लेमन टर्म्स में, बहुत ही इसका इजी अप्रोच है। सबसे पहले तो अपने जो आपके स्ट्रेंथ वाले एरियाज हैं उनको पहचानो। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि VARC एंड DLR बहुत अच्छे होते हैं उनमें, मोस्टली लोगों को क्वांट्स के साथ दिक्कत आती है। सो क्वांट्स के लिए क्या करो, अब देखो अगर आपके इंटरव्यू में जस्ट एज्यूम कि आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है जस्ट आपके FT से एक दिन पहले, तो उसमें तो क्या होगा कि यू कैन सॉल्व VRC एंड DLR जो आप बेसिकली टारगेट कर सकते हो। सो सबसे पहले स्टार्ट विद DLRC एंड DILR एंड VRC एंड देन जम्प बैक टू क्वांट्स। बट इन केस यू हैव 1 वीक, तो क्या करो, स्टार्टिंग में 4 दिन क्वांट्स लगाओ बैठ के, ठीक है। इंडिया विक्स पे जाओ और वहाँ पे इंडिया विक्स हो गया, नॉर्मली अपना गूगल भी कर लोगे कि लाइक क्वांट्स क्वेश्चन फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको देख के लगेगा कि हाँ ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिखा रखे हैं एंड आई कैन सॉल्व देम, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप उनसे अच्छे से वेल वेस्ट हो जाओगे। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी फॉर FT। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, या फिर जो भी सेक्शंस हैं उनको ऐसे सोचो कि आप किस में स्ट्रॉन्ग हो, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं उनको आराम से उठाना, उनको या फिर 2 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपके FT वाले टेस्ट से उठाना। बाकी सबको ट्राई टू पिक दैम, बट लाइक 4 to 5 डेज उनके लिए निकाल के रखना। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सो बहुत ही टाइम है। सो क्या कर सकते हो कि एक टॉपिक उठाया रोज का और उसके बारे में सर्च किया, उसके कम से कम लाइक यू हैव टू सॉल्व ओनली 20 क्वेश्चंस। अगर आपने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आई एम गारंटिंग यू ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप फिर छोड़ कर आओगे एग्जाम में, अपने FT वाले टेस्ट में। किसी भी टॉपिक के 20 क्वेश्चन कर लो, उसका कंसेप्ट समझ लो क्या है क्या नहीं है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में है, बोर्ड्स का है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आता है कि जो भी स्पीड होती है U+V, U-V, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड इज U+V, एंड अपस्ट्रीम जा रहा है तो U-V, और ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लाइक इजिली 10th पास स्टूडेंट कैन ऑल्सो सोल्व एंड यू गाइस आर इन कॉलेज। सो यू जस्ट हैव टू लाइक स्पेंड around 2 hours for one topic for quant specifically. VRC and DLR 30 minutes for one topic, it's enough. और अगर ऐसे कि आपका VRC and DLR वीक है और quant strong है, so shift your focus the other way, ठीक है। तो अपना स्ट्रैटेजी को लाइक उसको सर्कल बैक करो। Cool. So this is how you guys have to prepare for aptitude, and moving forward to the next topic, that is how to prepare for group discussions. अब देखो GD इम्पोर्टेंट क्यों है। अब GD इम्पोर्टेंट इसलिए कि कई बार क्या होता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखनी होती है। अब ये ग्रुप डिस्कशन आज के टाइम में बहुत ही एक वीक कंसेप्ट बन जाता है। रीजन बिंग दैट कि अगर ग्रुप डिस्कशन कंट्रोल है, लाइक यू आर गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पीक, देन आई थिंक इट इज़ मोर वैल्यूएबल। और कंपनीज आजकल करने लगे हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगता है ग्रुप डिस्कशन में कि यार हम कैसे बोलेंगे क्योंकि सब बोलते रहेंगे। तो वही बात है, हेजिटेंसी। एक देखते हैं कि यार बंदा कितना हेजिटेंट है दूसरों के सामने बोलने में। और अब देखो तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि आपका एक कम्युनिकेशन, आपकी हेजिटेंसी लेवल एंड हाउ वेल यू पुट योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये 2-4 चीज़ें देखते हैं कंपनी वाले, जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं HR वगैरह। एंड देन फिर आता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स आस्क्ड। सो टॉपिक्स में क्या आता है, अब बहुत सारा होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं, अब जैसे सपोज अभी इलेक्ट्रल, जैसे सपोज कोई भी बर्निंग इशू है मीडिया में और वो टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लाइक यू आर डिस्कसिंग अबाउट कि पेरिस क्लाइमेट मीट के बारे में क्या है, UN के गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ना बहुत ही कम लोगों को पता होगा क्योंकि लोग इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। सो कंपनी क्या करती है कि टॉपिक्स वो लेती है जो बड़े कॉमन हो। कॉमन कैसे, वुमेन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूछ लिया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पॉवर्टी के ऊपर। तो बहुत ही जिनके ऊपर आप नॉर्मली डिस्कस कर सकते हो कि अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक दे दिया, सो यू गाइस विल नॉट बी एबल टू डिस्कस। सो व्हाट कंपनीज डू, दे पिक यूजुअली इजी टॉपिक और इन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का हमें इफेक्ट बताओ, एंड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यू कैन गेट फ्रॉम गूगल। तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा टॉपिक्स की लिस्ट बन जाएगी। बट ये कि अपने आसपास सोचो, 5-6 टॉपिक जैसे बताए हैं मैंने, 6-7 टॉपिक्स, अपने आराम से बैठो किसी दोस्त के साथ डिस्कस करो। एंड ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन होएगा, 10 2-3 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, आपस में डिस्कस करो
कि अच्छा इसके ऊपर ये पढ़ सकते हैं, तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, यू विल गेट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और अगर दोस्तों के अलावा स्ट्रेंजर्स है तो इट इज़ स्ट्रेंजर्स, मतलब कॉलेज में क्या हो रहा है कि कुछ आपके बहुत अच्छे बडीज हैं और कुछ जिनसे आपकी कम आते थे, तो ट्राई टू सिट विद दोज पर्सन्स, तो आपको एक वो मिलेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। तो ये भी देखते हैं कि हाउ वेल आर यू इन मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये भी चीज़ हम ग्रुप डिस्कशन में देखते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं हाउ टू ग्रुप क्रैक ग्रुप डिस्कशन। देखो ग्रुप डिस्कशन में ना सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि ये होता है, जैसे ही सामने वाले बंदे ने एक टॉपिक दिया, यूजुअली जो हमारा माइंडसेट होता है ना कि भाई जिसने स्टार्ट किया उसका तो होगा होगा ही, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर ग्रुप डिस्कशन 5 लोगों में भी हो रहा है, 10 लोगों में भी हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अप्रोक्सीमेट 10 लोगों की टीम बनाते हैं ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। 10 में से एक ना एक बंदा तो स्टार्ट करेगा ही, तो जो बाकी 9 है, ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी बोलेगी अरे तुमने तो स्टार्ट नहीं किया, तो क्या क्या मतलब कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने स्टार्ट किया। हाँ प्लस पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप लोग उसने टॉपिक दिया एंड यू गाइस आर सिटिंग आइडल फॉर 2 मिनट्स और उसमें से 2 मिनट में किसी ने भी उसका एडवांटेज लिया, दैट इज लाइक अपॉर्चुनिटी पे, अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी क्या ये टॉपिक दे दिया और जब सब शांत बैठे नहीं बैठे तो उसमें से कोई भी स्टार्ट करेगा। सो उनको देखा कि हाँ आपने आप में वो प्रोएक्टिवनेस है, प्रोएक्टिवनेस ही बहुत देखते हैं यहाँ पे कि आप कितना ज़्यादा क्यूरियस हो किसी चीज़ के लिए, तो प्रोएक्टिवनेस आपकी कंपनीज चेक करती हैं। ठीक है, अब तो बात आती है कि क्रैक कैसे हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि एक बंदे ने स्टार्ट किया, उसके बाद बन जाता है मच्छी बाजार, इट इज़ अ फिश मार्केट। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत सारे आते हैं कि हम तो सिविलाइज लोगों की तरह हाथ उठाएंगे, एंड देन जिसने हाथ उठाया फिर सबको बारी बारी मौके बोलने का मौका मिलेगा। ग्रुप डिस्कशन से पहले आपकी ये एग्रीमेंट होता सब लोगों के बीच में कि हम तो बारी बारी बोलेंगे, बट देखा आपने कि फिर किसी ने उस बात को वैल्यू नहीं दिया और सब बोलने में लगे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रीड द रूम, कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो 6 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, नो मैटर 20 लोगों के साथ भी हो, तो रीड द रूम कि किसने स्टार्ट किया, लोग कैसे पॉइंट बोल रहे हैं, आप क्या पॉइंट्स बोल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपको अब देखो क्या होता है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, एक बंदे ने एक पॉइंट बोला, अब आप शुरू हो जाते हो कि आई एग्री विद हिम, आई एग्री विद हिम, तो आप तो जस्ट उसकी बोली हुई बातों को सपोर्ट कर रहे हो ना। इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स नॉट कि अगेंस्ट वर्सेस, फॉर वर्सेस अगेंस्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने माइंड से निकालो कि ग्रुप डिस्कशन में फॉर वर्सेस अगेंस्ट नहीं है कि आई सपोर्ट हिज पॉइंट, आई ये वो पॉइंट। आपको क्या करना है, आपके पास अपने 4 पॉइंट होने चाहिए, सामने वाले के साथ मैच हो रहे हैं, जब भी कोई दिक्कत नहीं है वर्ड्स आगे पीछे करके बोल दो। कंपनी को ये देखना है कि यार आप हेजिटेंट कितना हो, आप में प्रोएक्टिवनेस नहीं है, आप बोलने में कितना कंफर्टेबल हो। सो कोई टॉपिक मिला, जैसे अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक मिला, तो एक बंदा स्टार्टिंग में बोलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक जनरल और बेसिक लाइन जाती है, बड़ी क्लीशे लाइन जाती है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप सोचो कि ठीक है उसने ये बोल दिया, तो मैं इससे डिफरेंट क्या बोल सकता हूँ, कि कितने में कोई और कुछ बोलेगा, तो आप देखो कि फटाफट आपको ना बड़ा यहाँ पे तेज बनना पड़ेगा। अच्छा इसने अनएम्प्लॉयमेंट पे बोल दिया, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। उसने एक लाइन बोली, आपको उसके आगे की स्टोरी बतानी है कि yes unemployment in India is increasing, but my main question is the main discussion point is like why it's been increasing in India due to lack of skill sets or low number of jobs, global slowdown, economic recession। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे चीज़ें पुट करनी है। सपोज आपको वुमेन सेफ्टी पे पूछ लिया, एक ने बोला कि वुमेन्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, बोल दो आप कि यार बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स ensuring वुमेन सिक्योरिटी इन इंडिया, देयर हैव बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीसीटीवीज इन फ्लड। सो ये सब चीज़ें ना आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन से आएंगी और एक दो बार आप इनके बारे में सोचोगे तो आपको आ जाएगा। तो वही आता है कि रीड द रूम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिश मार्केट बना पड़ा ना, तो उस टाइम पे चुप मत बैठो। अगर आपको नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि चुप बैठ जाओ, अगर तुम्हें दिख रहा है कि सब शोर मचा रहे हैं तो तुम भी चुप बैठ जाओ, तो रिक्रूटर देखेगा कि हाँ तुमने तो रूम का डेकोरम मेंटेन किया है, तुम तो चुप बैठे हो, तो तुम्हें सेट कर लेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब वही बात है, सब दोगलापन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो बैठने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको तो आपने तो अपने आप को वीक दिखा दिया कि यार जब सब बोल रहे हैं तो मैं तो क्या ही करूँगा बोल के, सो आई विल स्टे क्वाइट। इट्स नॉट लाइक दैट माई बडी, आपको बोलना पड़ेगा। अगर रूम में फिश मार्केट है, बी अ पार्ट ऑफ दैट फिश मार्केट, एंड दैट्स वेयर आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि रीड द रूम। अगर सब एक डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं,
हाथ उठा उठा के बोल रहे हैं, जैसे ही बोल रहे हैं तो वो करो, और लग रहा है कि फिश मार्केट है, कूद जाओ। सो नॉर्मल सी बात है, आपको चीज़ ग्रैब करनी है, आपको नहीं मतलब है कि यहाँ पे फिश मार्केट बने क्या बोले, भाई मुझे मेरे नेक्स्ट राउंड से मतलब है, मुझे ये राउंड क्लियर करना है। सो उस केस में जो भी बेस्ट सिचुएशन में आप कर सकते हो वो करो। अगेन बिफोर डिस्कसिंग लाइक आई विल स्टे सेकेंड की रीड द रूम, तो बोलो उसके बारे में। एंड ये कि जब ये ग्रुप डिसीजन होएगा तो उससे पहले कम से कम 3 या 4 बार अपने दोस्तों के साथ बैठो, डिस्कस करो और करो, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करो। सो ऐसे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो 2 चीज़ें आती हैं कि ये तो हो गया ऑफलाइन की बात, कि जब आप इन पर्सन प्रेजेंट हो। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन भी ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, कोविड के टाइम हुआ था और अभी भी कहीं कोई ले लेता है। तो ऐसे टाइम पर क्या करो ना, ऐसे टाइम पर फिर क्या होता है कि या तो ऐसे टाइम पर भी आपको देखना होता है कि यार रेगुलेशन कितना है एनवायरनमेंट में, कौन रेगुलेट कर रहा है, जो आपका फैसिलिटेटर है, एट वेदर ही और शी इज ट्राइंग टू रेगुलेट दिस थिंग, कि कितना उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, आर दे गाइस गिविंग इक्वल चांस। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑनलाइन में ये हुआ है कई जगह पे कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और पता लग रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है तो किसी ने आपको म्यूट कर दिया। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और आपका लाइन नहीं गया और आपका ध्यान नहीं गया कि यार मुझे तो, मैं तो म्यूट पर हूँ। तो लोग ये भी कर देते हैं कभी कभी बच्चे, मतलब नॉर्मल सी बात है, पीपल आर मिस्टीवियस एंड यू गाइस आर व्हाट 21-22 जो भी एज है, तो ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। सो देखो अगर ऑनलाइन में भी, तो ऑनलाइन में क्या करो, सबसे पहले तो अपनी चीज़ें चेक कर लो कि हाँ कोई मुझे वो तो नहीं कर रहा है, लाइक कोई मुझे रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे म्यूट पे तो नहीं डाल रहा है, कोई मुझे बाहर तो नहीं निकालने पे लगा है, कोई मुझसे मीटिंग में तो वो नहीं कर रहा है, वो होस्ट कंट्रोल वगैरह चली चीज़ बात आ जाती है। बट हाँ अगर वहाँ पे आपका कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन प्ले कर रहा है एंड ही इज गिविंग इक्वल चांस, सो नेक्स्ट वेट फॉर योर टर्न एंड रेज हैंड, वो ऑप्शन होता है ना मीटिंग्स में आजकल रेज हैंड करने का। सो रेज योर हैंड कि हाँ आई वांट टू स्पीक, एंड अगर वो वहाँ पर आपको टाइम दे रहा है, ठीक है, और वो आपने हैंड रेज किया, बट इट अगेन ऑनलाइन में भी इट्स लाइक अ फिश मार्केट, देन अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। डिस्कशन क्या है यार, दे वांट टू सी कि आप कितना बोल रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा। So these are like some things in which how you can crack group discussions. तो अभी हम बात करेंगे वापस एक बार, हम अपने प्लेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम पे चलते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, देन ओवरव्यू ऑफ फार्मा लाइफ साइंस कंसल्टेंसी, देन देयर इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफटी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस। अब आ जाता है मॉड्यूल 4, हाउ टू अप्रोच एंड विन केस स्टडीज। सो गाइज नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में ना, जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है, इट इज़ यहाँ पे ये 3 आवर्स लिखा है, बट आई थिंक इट्स अराउंड 6 आवर्स और सो, ठीक है। तो ये डबल टाइम का हो गया था क्योंकि इनिशियली वी ट्राई टू नैरो इट डाउन कि ठीक है इसको हम 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, बट देन देर आर लाइक 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास सब इसके टॉपिक्स हैं। एंड इसमें भी हमारे पास क्या है कि वी हैव सोल्ड अराउंड 8 to 10 case studies, like 5 are specific to pharma, 4 are general case studies, so like we have solved around 10 to 12 case studies. So उसमें हमें टाइम लगा समझाने में सबको, एंड बिलीव मी इफ़ यू पे योर अटेंशन यहाँ पर इस वाले में, तो यू विल नो हाउ टू टैकल दिस, और इसके बारे में तो हमने बात कर ली है, तो इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी बन जाएगी। अगर आपने मॉड्यूल 4 कर लिया, देन यू विल ऑल्सो बी गुड इन मॉड्यूल 2 and 3, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाएगा उससे। तो मॉड्यूल 2 और 3 ये थोड़ा सा डिस्कशन देखो, देन मॉड्यूल 4 देखो, देन दोबारा से मॉड्यूल 2 से 3 पे आओ और मेरी बातों को दोबारा सुनो, ठीक है। देन यू विल नो कि क्या क्या चीज़ें हैं और हाउ इट विल बी लाइक मोर हेल्पफुल, और आपको हाउ यू कैन थिंक स्ट्रेटेजिकली। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मॉड्यूल फुल करने के बाद पता लगेंगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर मॉड्यूल 2 and 3. See you guys in module 4 and